محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی موچی گیٹ حسینیہ ہال سے بچوں کا جلوس نکالا گیا۔ ننھے عزاداروں نے شہدائے کربلا کو پرسا دیا۔ محرم الحرام کے آغاز پر موچی گیٹ حسینیہ ہال سے بچوں کا جلوس نکالنے کی قدیم روایت ہے، جسے آج بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ جلوس میں درجنوں ننھے عزادار شریک ہوتے ہیں اور شہدائے کربلا کو پرسا دیا جاتا ہے۔ محرم کا چاند جب بھی نظر آتا ہے ہم یا حسین کا امام برگاہ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں یا حسین کی آواز نکال کر کے۔ چاند رات کو ہمارا بچوں کا ماتم شروع ہو جاتا ہے، جو کہ گلی گلی کوچے کوچے یا حسین کی صدا لگاتے ہوئے اپنے مقررہ مقام حسینی ہال پہ دوبارہ ودیا ہو جاتا ہے۔ جلوس سے عزا میں شریک بچوں نے شہدائے کربلا کی یاد میں سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کی۔ جلوس موچی گیٹ کی مختلف امام بارگاہوں سے ہوتا ہوا واپس حسینیہ ہال پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی یہ معصوم بچے یا حسین کی صدائیں لگاتے اندرون شہر کی مختلف بارگاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد اسد کے ساتھ محمد علی رضا، سٹی 42۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ بجلی کے صارفین پر سبسڈی ختم کرنے کی تیاریاں، ٹیرف میں بھی تبدیلی کی تجاویز، 20 لاکھ عام شہری متاثر ہوں گے۔ 200 سے 700 یونٹ والے صارفین کے بلوں پر رعایتی ٹیرف ختم ہوگا۔ 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مشروط سبسڈی ملے گی۔ وفاقی حکومت نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بلوں پر سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیسکو دستاویزات کے مطابق 200 سے 700 یونٹس استعمال کرنے والے صارفین کے بلوں پر سبسڈی ختم کی جائے گی۔ فیصلے پر عمل درآمد کی صورت میں صرف 200 یونٹس استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو مشروط سبسڈی دی جائے گی۔ صارفین نے بجلی کے بلوں پر رعایتی ٹیرف ختم کرنے کے مجوزہ فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے۔ بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں حکومت ملی تو اس ملک سے غربت ختم کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ غربت ختم کریں یا غریب ختم کریں؟ آپ روز مارتے ہیں ہمیں، ایک دفعہ مار دیں، ہاں روز مارنے سے۔ میں پہلے 300 یونٹ استعمال کرتا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ لیس ملتی تھی، اس کا فائدہ تھا۔ اب جو استعمال کرنا ہے وہی بل آنا ہے، لیکن یہ تو ذاتی ہے نا، لیو دینا چاہیے کہ اتنا ہم پہ وہی نہ ڈالیں کہ جتنا ہم برداشت نہ کر سکیں۔ عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی ہے، ٹھیک ہے، بل بہت، میرے گھر کا بل بہت زیادہ ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق بجلی کے بلوں پر سبسڈی کا خاتمہ IMF کے دباؤ پر کیا جا رہا ہے، تاہم حکومتی سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ شاہد سپرا، سٹی 42۔ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کرونا وائرس کے کیسز میں روز بروز اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز لاہور میں کرونا سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن مثبت کیسز کی شرح 2 ماہ بعد دوبارہ سے 500 کا ہنسا عبور کر گئی۔ 565 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 9.2% تک پہنچ گئی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1036 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں تو جان سے جانے کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، لیکن دیگر اضلاع میں کرونا وائرس 7 زندگیاں نکل گیا۔ لاہور شہر میں 565 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں کرونا کے کیسز کی مجموعی تعداد 3,64,680 ہو گئی۔ اب تک پنجاب میں 3,35,530 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مثبت کیسز کی تعداد 17,951 ہو گئی۔ کرونا وائرس کی بھارتی قسم نے ٹیسٹنگ مشینوں کو بھی چکما دے دیا۔ صرف 60% تک ٹیسٹ قابل اعتماد ہیں۔ طبی ماہرین نے خبردار کر دیا، بچے بھی تیزی سے مرض کی لپیٹ میں آنے لگے۔ کرونا کی علامات ظاہر ہونے پر ٹیسٹ پر بھروسہ کرنے کی بجائے معالج سے رجوع کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی بھارتی قسم PCR ٹیسٹ میں بھی تشخیص کرنا مشکل ہو گیا۔ ٹیسٹ میں وائرس کی 60% تک تشخیص ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ 40% کیسز میں رپورٹ منفی آتی ہے۔ طبی ماہرین نے زور دیا ہے کہ صرف ٹیسٹ رپورٹ پر اکتفا نہ کیا جائے۔ اگر علامات کورونا کی ہیں تو علاج کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کیا جائے۔ اگر پیشنٹ کو کوئی بھی سمٹمز آ رہے ہیں آج کل، نزلہ، زکام، بخار، الٹی اور سر میں درد، خاص طور پہ کیونکہ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس میں ڈفرینٹ سمٹمز کے ساتھ بھی پیشنٹس آ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو کیئر کرنی ہے، آپ کو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، PCR چیک کروانا ہے۔ PCR نیگیٹو بھی آتا ہے اور سمٹمز آپ کے کنٹینیو ہو رہے ہیں، اور کنٹینیو ہونے کے باوجود آپ اس چیز کو کیئر نہیں کریں گے تو یہ سوچ لیں کہ یہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر تنویر الاسلام کہتے ہیں کہ کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بچے ایک دوسرے کا کیئر کرتے ہی نہیں، کر سکتے نہیں، ان کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم سوچیں۔ اور بچوں کے پیشنٹس آ رہے ہیں، بالکل بچوں میں کووڈ پازیٹیو آ رہا ہے، کافی سے زیادہ آ رہا ہے، پہلے سے زیادہ ہے، لیکن سمٹمز اگین تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ بچوں کو خود تو
कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी को नज़ला, किसी को ज़ुकाम, किसी को पेट में दर्द, किसी को बुखार आता है, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। बट वो वायरस कैरी कर रहे हैं और ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। तिबी माहिरीन कहते हैं कि कोरोना से बचाव का बेहतरीन हल एहतियात है। मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले की पाबंदी समेत SOPs पर अमल किया जाए। खुद भी मरज से बचें और अपने प्यारों को भी महफूज रखें। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। कोरोना की चौथी लहर में तेजी, शहरियों ने वैक्सीन को संजीदा ना लिया। सिर्फ 16% लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो सकी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 67,87,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ताहम अभी तक 11 लाख अफराद ने मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाई है। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में जुज़वी तौर पर वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद 20,50,000 है, जबकि जुज़वी तौर पर वैक्सीनेशन करवाने वालों को अभी पहली खुराक ही लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में अभी भी 36 लाख से जायद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन की एक भी खुराक नहीं लगवाई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर हुकाम के मुताबिक हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। यूसी की सतह पर भी वैक्सीनेशन की फराहमी तेज कर दी गई है। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराकें कौन डिकार गया। ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद वैक्सीनेशन के सरकारी रिकॉर्ड में 4,34,000 खुराकों का वाज़िह फर्क सवालिया निशान बन गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत को अब तक 2,25,17,279 कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिली। पंजाब में 2,14,000 वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। पंजाब हुकूमत के पास 25,02,817 वैक्सीन का स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में हुकूमत के पास 20,68,245 वैक्सीन मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। वैक्सीन के सरकारी अदाद-ओ-शुमार में 4,34,574 का वाज़ेह फर्क है, जो हुकूमती रिकॉर्ड पर सवालिया निशान बन चुका है। वैक्सीनेशन से मुतालिक महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के हुकाम से भी डाटा मांगा गया, जिसमें यही फर्क सामने आया। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हुकाम का कहना है कि अजला में वैक्सीनेशन के अंदराज के साथ डाटा अपडेट हो रहा है, जिसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। आगे बढ़ें। सगिया में दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है जंगलात से लाहौर की फ़ज़ा बेहतर करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर, वज़ीर आला और वज़ीर सनअत असलम इकबाल ने अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्लीन एंड ग्रीन विजन के तहत सगिया में दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। 100 कनाल पर मुहित इस जंगल में 1,65,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। मियावाकी जंगल आम जंगलात की निस्बत 10 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि इस इक़दाम से लाहौर की फिजा में कार्बन की मिकदार कम करने में मदद मिलेगी। अगर अभी दुनिया में जितने भी हम बसते हैं, हम अब पूरी कोशिश करें तो शायद हम फिर इसके और जो बड़े नुकसान आते हैं उससे दुनिया को बचा सकते हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी हैसियत से बहुत आगे निकल के अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की है ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गवर्नर हाउस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कन्वेंशन मुनक़िद किया जाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक समेत हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले दीगर इक़दामात से आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला ने भी मुलाकात की। पंजाब के इंतजामी उमूर, अवाम की रिलीफ के लिए इक़दामात, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तदारुक के लिए लाए अमल पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने पंजाब के इंतजामी ढांचे की बेहतरी के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने भी मुलाकात की और मईशत में बेहतरी के लिए मंसूबों पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने आब पाक अथॉरिटी के इजलास की सदारत की और साफ पानी की फराहमी के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने पर जोर दिया। शहर में नया अस्पताल बनेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इन्फेक्शन डिजीज कंट्रोल अस्पताल के लिए 1.2 अरब रुपए मांग लिए। शहर में एक नया अस्पताल बनाने का फैसला किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने हुकूमत को इन्फेक्शन डिजीज कंट्रोल अस्पताल बनाने की समरी अरसाल कर दी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने पहले मरहले पर अस्पताल के लिए 1.2 अरब रुपया मांगा है। महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की समरी पर काम शुरू कर दिया है। मेट्रो बसों में खराबी मामूल बन गई। रेलवे स्टेशन के नजदीक एक और बस को ब्रेक लग गए। 2 माह में 6 बसें हादसात और 8 बसें फनी खराबी पर जवाब दे गईं। लाहौर मेट्रो के 62 के फ्लैट में ऑपरेशनल बसों की तादाद 48 रह गई। मेट्रो बस सर्विस में बेहतरी के लिए इसे चलाने का इख्तियार पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को दिया गया। सर्विस में बेहतरी क्या आती, इसकी हालत मजीद अबतर हो गई। एक के बाद एक मेट्रो बस डी ट्रैक होने लगी। रेलवे स्टेशन के करीब एक और मेट्रो बस को ब्रेक लग गए। बस को खराबी पर मेन ट्रैक पर खड़ा कर दिया गया और मुसाफिरों को पैदल अपनी मंजिल की जानिब जाना पड़ा। गुज़श्ता 2 माह में मेट्रो बस खराब होने का 8वां वाकया है, जबकि हादसात का शिकार होने वाली बसें अलग हैं। ज़राए के मुताबिक 11 नाकारा बसें डिपो में पार्क
दर्दनाक हैं। फ्लेट में चलने वाली 48 बसों में से 25 बसों के एसी खराब हैं। पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से रवामा नई बसों को फ्लेट में शामिल करने का कहा जा रहा है। तहम जब तक ये बसें नहीं आती, अवाम को इन्हीं धक्का स्टार्ट बसों पर गुजारा करना पड़ेगा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज करने के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नाम तजवीज़ किया गया। महकमा बल्दियात ने स्कीम्स पर कमीशन बनाने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। महकमा बल्दियात ने हुकूमत को गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स पर कमीशन बनाने की समरी अरसाल कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नाम कमीशन के सरबराह के तौर पर तजवीज़ किया गया है। कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज करेगा। कानून की 25% से ज़ायद खिलाफ वर्जी पर स्कीम को दुरुस्त करना पड़ेगा। 25% तक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना करके स्कीम को रेगुलराइज किया जाएगा। कमीशन सिर्फ रिहायशी इलाकों में हाउसिंग स्कीम की मंजूरी देगा। ग्रीन एरिया में बनने वाली हाउसिंग स्कीम्स को मंजूर नहीं किया जा सकेगा। LDA बजट 2021-22 की मंजूरी इल्तवा का शिकार होने का मामला। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बजट की मंजूरी के बगैर मेगा प्रोजेक्ट्स की अदायगियों का हल निकाल लिया। DG LDA की अबूरी मंजूरी से शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को 20 करोड़ 70 लाख की अदायगियां कर दी गईं। DG LDA की अबूरी मंजूरी से गुलाब देवी अंडरपास और शेरावाला गेट मंसूबे को 20 करोड़ 70 लाख की अदायगी कर दी गई। शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबे के लिए 14 करोड़ 70 लाख के बिल की अदायगी कर दी गई है। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे के लिए 7 करोड़ का बिल अदा कर दिया गया। बजट की मंजूरी के इल्तवा के बायस अदायगियां रोक दी गई थी। DG LDA ने मंसूबे के काम मुतासर होने की बिना पर अबूरी अदायगी का केस तैयार करने की हिदायत की थी, जिस पर शोबा फाइनेंस ने तामीराती कंपनियों को अदायगी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने खुद मुख्तार इदारा बनाने का फैसला कर लिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बेबालों पर नहीं रहेगी। कंपनी को अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ पर मुसवदा तैयार कर लिया गया। LWMC जुर्मानों और रिकवरी के लिए मुनज़्ज़म इन्फोर्समेंट भी नाफिज कर सकेगी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने कानून साजी के लिए ड्राफ्ट तैयार करवा दिया है। कानून साजी के बाद LWMC कंपनी से अथॉरिटी बन जाएगी। अथॉरिटी बनने से LWMC माली, इंतजामी और कानूनी मसाइल के हल के लिए खुद मुख्तार होगी। LWMC जुर्मानों और रिकवरी के लिए मुनज़्ज़म इन्फोर्समेंट भी नाफिज कर सकेगी। खुद मुख्तार अथॉरिटी बनने से कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खातिर ख्वाह मौके मैसर आएंगे। कूड़ा फैलाने और जलाने पर भारी जुर्माने और कैद की सजा भी दी जा सकेगी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल का कहना है LWMC को अथॉरिटी बनाने का ड्राफ्ट महकमा कानून को अरसाल किया जाएगा। अथॉरिटी में कंपनी के मौजूदा वसाइल और ह्यूमन रिसोर्स को ही इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम। लाहौर के सरकारी स्कूलों में एक महीने के दौरान 48,000 नए तलबा के दाखिले किए गए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के सरबराह परवेज अख्तर ने कहा, सरकारी स्कूलों में नए दाखिलों को मुस्तहकम भी रखा जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी स्कूलों में दाखिलों की शरह बढ़ाने के लिए एजुकेशन अथॉरिटीज़ को अहदाफ दिए गए थे। दाखिला मुहिम के तहत लाहौर के सरकारी स्कूलों में एक महीने के दौरान 48,000 नए तलबा दाखिल किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने खसूसी टीमें तश्कील देकर दाखिलों के अहदाफ हासिल किए हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में अगस्त के महीने में दाखिला मुहिम जारी रहेगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के सरबराह परवेज अख्तर ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, सरकारी स्कूलों में नए दाखिलों को मुस्तहकम भी रखा जाएगा। दाखिलों का हदफ हासिल करने के लिए स्कूल काउंसिल में शामिल अफराद को मुतहरिक किया गया था। परवेज अख्तर ने बताया कि लाहौर के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद 6,33,000 हो गई है। HEC का बड़ा फैसला। BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD में दाखिलों की पॉलिसी मनसूख कर दी गई। PhD में दाखिलों के लिए MPhil की डिग्री खत्म करने पर वाइस चांसलर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD में दाखिलों की पॉलिसी मनसूख कर दी गई है। HEC ने कमीशन के इजलास में PhD की नई पॉलिसी मनसूख करने की मंजूरी दी है। MPhil डिग्री की बजाय डायरेक्ट PhD में दाखिलों पर वाइस चांसलर्स को तहफ़्फ़ुज़ात थे। पॉलिसी के तहत किसी भी मज़मून में BS ऑनर्स की डिग्री करने वाले तलबा को PhD में दाखिलों की इजाजत दी गई थी। BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD पॉलिसी का 2022 में दोबारा जायजा लिया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने लाहौर समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों को आगाह कर दिया है। शहर भर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 8 घंटों के दौरान 20 मोटरसाइकिल चोर ले उड़े। नौलखा से रजा, कला गुजर सिंह से हुजैफा की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शफीकाबाद से अजीज, हामिद और रशीद की मोटरसाइकिलें भी चोरी हो गईं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, बताइएगा, इतनी वारदातें हुई हैं शहर में, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस हवाले से? लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें थम ना सकी। पीर की सुपहर 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक यानी सिर्फ 8 घंटों के दौरान 20 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। पुलिस के आदाद शुमार सिटी 42 ने हासिल किए हैं। इन आदाद शुमार के मुताबिक
नौलखा से रजा, किला गुज्जर सिंह से हुजैफा, शफीकाबाद से अजीज, हामिद और रशीद की मोटरसाइकिलें चोर ले उड़े। टाउनशिप से लतीफ और वकास की मोटरसाइकिलें, हरबंसपुरा से फाहद, शुमाली छावनी से शाबान, किला गुज्जर सिंह से साद, मोची गेट से आसिम, लारी अड्डा से अली रजा और असलम की मोटरसाइकिलें चोरी हुई। इसी तरह सांडा से मुजाहिद, कोट लखपत से शाहबाज, नसीराबाद से अजीम, न्यू अनारकली से फयाज, सब्जदार से एजाज, गुलबर्ग से हमजा और ग्रीन टाउन से शहरी रमजान की मोटरसाइकिल चोर ले उड़े। ये तमाम वारदातें जो हैं ये मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली वारदातों के ये जो शिकायत है वो मुतल्लिका थानों में कर दी गई है और जो मुतासरा शहरी हैं उन्होंने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें भी जमा करवा दी हैं। जी ठीक है स्टार, बहुत शुक्रिया। हंजरवाल से 4 बच्चियों के अगवा का केस, अदालत ने 5 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी करते हुए एक बच्ची का DNA करवाने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि लगता है बच्ची से ज्यादती हुई है। जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट अयाज रफीक लोन ने केस पर समाअत की। मुलजिम कासिम, नईम, शहजाद, आसिफ और काशिफ को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिमान 4 बच्चियों को अगवा करके लाहौर से साहिवाल ले गए। मुलजिमान बच्चियों को जिस्म फरोशी के लिए फरोख्त करना चाहते थे। बच्चियों में किन्जा, अनम, आयशा और समरीन शामिल हैं। बच्चियों की उम्रें 12 से 14 साल के दरमियान हैं। तफ्तीशी अफसर फरजाना मुश्ताक ने अदालत को बताया कि एक बच्ची आयशा का मेडिकल मशकूक है, लगता है बच्ची से ज्यादती की गई है। इस बच्ची का DNA टेस्ट करना चाहते हैं। अदालत मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में तोसी के साथ बच्ची का DNA करवाने की इजाजत दे। अदालत ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी करते हुए बच्ची का DNA करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के तमाम शोबों की मालूमात वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी 14 अगस्त को लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट को अपग्रेड करने से मुतालिक एक ही रोज़ में 2 अहम इजलास हुए। हाईकोर्ट की न्यू जजेस लाइब्रेरी में 10:30 बजे सुबह होने वाले पहले इजलास की सदारत जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन ने की। इजलास में सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाईकोर्ट डॉक्टर अब्दुल नासिर, डिप्टी रजिस्ट्रार हाईकोर्ट शफकत अब्बास मगियाना, डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद काशिफ पाशा, सीनियर रिसर्च ऑफिसर इमरान शेख, सिविल जज मियां उस्मान तारिक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। घर घर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए कमिश्नर लाहौर का बड़ा इकदाम। बेहतरीन तालीमी इदारों के तरबियत याफ्ता वॉलंटियर्स घर घर कोविड वैक्सीन आगाही पर मामूर होंगे। इब्तदाई मरहले में 900 रजाकार हुकूमती महकमों के साथ मिलकर काम करेंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत वैक्सीनेशन ड्राइव मौसर और तेज़ बनाने से मुतालिक इजलास हुआ। एडिशनल कमिश्नर अमान अनवर कदवाई, ADCG शाहिद काठिया, महबूबुर्रहमान इंचार्ज रिसर्च इंस्टीट्यूट लम्स, ACG उस्मान, AC प्रोटोकॉल हाफिज कैसर अब्बास, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर परवेज, MO रेगुलेशन उस्मान लियाकत समेत ACs मॉडल टाउन शालामार रायवेंड और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेल्स मैनेजर सेंट्रल पाकिस्तान एमिरेट्स मसूद अहमद और सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव एमिरेट्स मकसूद फारूकी का सिटी न्यूज़ नेटवर्क हेड ऑफिस का दौरा। हेड ट्रैवल 92 नवीद मलिक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया। नए तैनात होने वाले सेल्स मैनेजर सेंट्रल पाकिस्तान एमिरेट्स मसूद अहमद, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव एमिरेट्स मकसूद फारूकी ने कोट लखपत में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा किया। हेड ट्रैवल 92 नवीद मलिक ने मेहमानों को सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया। मेहमानों को न्यूज़ रूम, प्रोडक्शन, न्यूज़ स्टूडियो, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट समेत दीगर शोबों के बारे में आगाही दी गई। सेल्स मैनेजर सेंट्रल पाकिस्तान एमिरेट्स मसूद अहमद का कहना था, स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज़ रूम देखकर बहुत खुशी हुई। मीडिया इंडस्ट्री में सिटी न्यूज़ नेटवर्क का बड़ा नाम है। सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव एमिरेट्स मकसूद फारूकी ने कहा कि आवाम को बरवक्त मालूमात की फराहमी और दीगर रहनुमाई के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क मुस्तनद इदारा है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश ने पौधा लगाया। साबिक डायरेक्टर वज़ीर आला शिकायत सेल शाहिद कादिर, सेक्रेटरी हेल्थ और दीगर ने शिरकत की।
प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत सीनियर सहाफी और तजज़िया निगार सुहेल वड़ाइच ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ भी मौजूद थे। साबिक डायरेक्टर वजीर आला शिकायत सेल शाहिद कादिर ने भी तकरीब में शिरकत की। शुरका ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत पर जोर दिया।